السلام علیکم دوستوں، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا جناب دوسن فقیر اور علاؤ الدین سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، اور دوسری طرف منگول کا وانڈا سمانگر نے عثمان صاحب کو جال میں پھنسا کر پکڑ لیا تھا۔ دوستوں کلو عثمان سیزن 4 ایپیسوڈ 59 میں ہم دیکھیں گے بہندر نے اپنی تلوار نکال کر عثمان صاحب کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے، واہ عثمان صاحب، ذرا اپنے آپ کو تو دیکھیں، تمہیں معلوم ہو چکا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ تم نے جس بہندر کو اپنے سامنے حقیر سمجھا تھا، اس بہندر نے آج تمہیں شکست دے دی ہے۔ لیکن عثمان صاحب اس کی تلوار پکڑ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گیدڑوں کا روب ختم ہو جاتا ہے جب بھیڑیے سے دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب بہندر کی تلوار اپنے ہاتھ میں زخمی کر لیتے ہیں، بہندر کی تو ہوا ہی ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ عثمان صاحب اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس پر کمانڈر سمانگر کہتا ہے، عثمان مزاحمت مت کرو، تم میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے۔ لیکن بہندر سمانگر کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں عثمان کو فی الحال زندہ رکھنا ہے، لیکن سمانگر کہتا ہے، تم مجھ سے میرا شکار چھیننے کی کوشش مت کرو۔ بہندر لیکن عثمان صاحب نے آپ کو آزاد کروا کر منگول سپاہیوں کو جہنم واصل کرا تھا۔ ادھر بہندر سمانگر کو کہتا ہے، اگر تم نے عثمان صاحب کو مار دیا تو والدہ سلطانہ تمہارا سر کاٹ دیں گی۔ والدہ سلطانہ نے سختی سے حکم دیا ہے، تمام قبائلی عثمان پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر ہم نے عثمان کو اس طرح مار دیا تو تمام قبائلی ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ پہلے ہم عثمان کو غدار ثابت کریں گے، پھر ماریں گے۔ ابھی تمام اہلِ اپنے سپاہیوں کو روک۔ اس پر سمانگر کہتا ہے، جب تم کتے کا شکار پوری چوری کرتے ہو تو اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے ہو۔ بہندر، یہ آخری بار ہے، میں تمہاری بات مان رہا ہوں۔ اپنے سپاہیوں کہتا ہے کہ عثمان کو زندہ ہی پکڑو۔ اتنے میں عثمان صاحب کے سپاہی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ برہان کہتا ہے کہ ہمارے سردار مشکل میں ہیں۔ تمام سپاہی آ کر عثمان صاحب کی مدد کرنے لگتے ہیں اور پھر وہاں پر ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم حویلی میں دیکھیں گے، جب بالا خاتون اسمیان سلطانہ کو کہتی ہے، مہمان کی طرح تم یہاں آ کر میزبان بن جاتی ہو، تم ایسا کبھی نہیں کر پاؤ گی، میں کبھی بھی اپنے سردار کی امانت تمہیں نہیں لینے دوں گی۔ اسمیان سلطانہ، والدہ سلطانہ اسمیان، لیکن ملعون بالا کو روکتے ہوئے کہتی ہے، تمام اس کا کام کو اور مشکل بنا رہی ہو۔ ملعون خاتون بالا خاتون کو روک ہی رہی تھی، اسمیان سلطان کے سپاہی اندر آ جاتے ہیں۔ آؤ جی کہتا ہے کہ تم تمام لوگوں کو پکڑ لو۔ اتنے میں چرگوتائے بھی اپنی سپاہی کو اندر بلا دیتا ہے۔ اس طرح تمام سپاہی کمرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے بنگی خاتون بالا خاتون کو کہتی ہے کہ بالا خاتون تو یہ تم کیا کر رہی ہو، والدہ سلطان ہیں۔ اس کا بالا خاتون کہتی ہے کہ والدہ سلطان ہو یا کچھ بھی، لیکن وہ یہاں پر عثمان صاحب کی حویلی نہیں لے سکتی، اور میں عثمان صاحب کی خاتون ہوں۔ ملعون خاتون اسمیان سلطانہ کو کہتی ہیں، ہم آپ کو بھی کیا کہ اور کوئی عثمان صاحب کی امانت نہیں دیں گے۔ پھر بالا خاتون کہتی ہیں، ہم اس حویلی کے لیے بھی جان لینے اور قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف ہم کونیا کے محل میں دیکھیں گے، جہاں پر عثمان صاحب کے سپاہی اور منگول سپاہی سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کے سپاہی منگول سپاہیوں پر بھاری پڑتے ہیں۔ پھر بہندر بھی عثمان صاحب پر حملہ کرنے لگتا ہے، لیکن عثمان صاحب بڑی آسانی سے اس نے نیچے گرا دیتے ہیں۔ دوسری طرف حویلی میں آؤ جی سلطان اسمیان کہتا ہے کہ سلطان آپ حکم کریں تو ہم ان سب کو مار دیں گے۔ اس پر چرگوتائے آؤ جی کو جواب چپ کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ پہلے تم اپنی جان تو بچاؤ، لیکن اسمیان سلطانہ اپنے سپاہیوں کو روکتے ہوئے کہتی ہے، سپاہیوں اپنی تلواریں نیچے کر لو۔ بعد اسمیان سلطانہ بالا خاتون کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ عثمان کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے۔ اور پھر وہ بالا خاتون سے مزید پوچھتی ہے کہ بالا خاتون، میں آپ سے مزید کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آپ نے میری بات کا جواب نہ دیا اور خاموش رہیں تو مجھے اس بات پر بہت ہی افسوس ہوگا۔ بالا خاتون پھر کہتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ اس پر اسمیان سلطانہ کہتے ہیں کہ میں تو صرف یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ کون یہاں پہ زیادہ طاقتور ہے، یہاں پر چالاک، اور اسمیان سلطانہ اپنی بات چینج کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسمیان اور بالا خاتون کا امتحان لے رہی تھی، اور پھر میں نے آپ میں جو دیکھنا تھا وہ میں دیکھ چکی ہوں، اور آپ کی میں اس بہادری سے بہت ہی خوش ہوں۔ اس پر ملعون کہتی کہ والدہ سلطانہ، آپ بہت اچھی طرح دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کو ہی دھوکے میں ڈال دے۔ پر اسمیان سلطانہ ملعون خاتون کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میری آنکھیں کبھی غلط نہیں ہوتی۔ پھر وہ بالا خاتون کو اپنے ساتھ ملنے کے لیے دعوت دیتی ہے، اور بالا خاتون کو کہتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے مجھ سے آ کے ملو۔ کہتی ہے کہ بالا خاتون، جتنی جلدی ہو سکے مجھ سے آ کے ملو،
मैं आपको और अच्छे तरीके से जानना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम कोनिया में उस्मान साहब को देखेंगे जो समांगर को धूल चटार कर बाहर सैन में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मंगोल सिपाही उस्मान साहब और उनके सिपाहियों को घेर लेते हैं और उसके बाद महिंदर और समांगर भी उस्मान साहब के पीछे पीछे बाहर पहुँच जाते हैं। समांगर फिर कहता है कि उस्मान साहब आज तुम में से खड़े हुए हो कि जैसे कि एक हिरन जाल में फंस जाता है, लेकिन इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि अगर हिरन जंगल से वाकिफ हो तो तुम शिकार की जगह शिकारी बन जाओगे समांगर। लेकिन इस पर समांगर कहता है कि उस्मान तुम्हें मेरे इस महल में आना ही नहीं चाहिए था, अब तुम वापस कैसे जाओगे। लेकिन इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि अब ये महल तुम्हारा नहीं रहा समांगर, क्योंकि अब हम यहाँ पर आ चुके हैं और हम इस महल को हासिल करने का तरीका भी जानते हैं। उसके बाद समांगर अपने नौकरों को हुक्म देता है उस्मान और उनके सिपाहियों को पकड़ लो और मंगोल सिपाही उस्मान साहब पर फिर हमला कर देते हैं। उस्मान साहब आयकुत और तुर्गुत को कहते हैं कि जानते हो तुम्हें क्या करना है, जाओ अपना काम करो, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही मंगोल सिपाहियों से लड़ने लग जाते हैं। उस्मान साहब के बहुत सारे सिपाही बहुत ही जारहान थे, जाराना तरीके से लड़ रहे थे। लड़ाई के दौरान ही महिंदर बुरहान को कहता है बुरहान अल्प ये रियासत का मसला है, तुम पुरसुकून हो जाओ और खून मत बहाओ। लेकिन बुरहान कहता है कि जब तक मेरी जान नहीं चले जाती महिंदर मैं तब तक लड़ता रहूंगा। फिर महिंदर ये कहता है कि अगर तुम्हारा यही फैसला है तो फिर तुम्हारे इस जिस्म पर ज़्यादा देर तक जान नहीं रहेगी। और ये कहते ही महिंदर बुरहान पर हमला कर देता है, लेकिन बुरहान महिंदर और मंगोल सिपाही से बहुत ही जारहाना तरीके से लड़ रहा था क्योंकि मंगोल सिपाही की तादाद बहुत ही ज़्यादा थी। मंगोल के सिपाही उस्मान के सिपाहियों पर हावी हो रहे थे। वो एक एक करके उस्मान के सिपाहियों को पकड़ने लग जाते हैं और महिंदर भी बुरहान को पकड़ लेता है। और फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों को देखकर कहते हैं मेरे तमाम सिपाही पकड़े जा चुके हैं, ऊपर से तीर अंदाजों ने भी हमारे निशाने ले रखे हैं। और इस पर समांगर कहता है कि अपने हथियार डाल दो उस्मान, अपने हथियार डाल दो ताकि तुम एक और रात जिंदा रह सको, समांगर कहता है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं तुम मुझे क्या जिंदा रखोगे, बल्कि मैं तुम्हें सांस नहीं लेने दूंगा। उस्मान साहब उसे नौकर कहकर बुलाते हैं, लेकिन समांगर कहता है मैं नौकर नहीं हूँ, मैं एक अजीम मंगोल कमांडर समांगर हूँ, नौकर तो मेरे नीचे काम कर रहे हैं। लेकिन उस्मान साहब फिर उसे नौकर कहकर बुलाते हैं। फिर समांगर अपने एक नौकर को कहता है उस्मान से उसकी तलवार ले लो। जब वो नौकर उस्मान साहब से तलवार लेने लगता है तो उस्मान साहब उसका हाथ ही काट देते हैं। उसके बाद अपनी तलवार भी फेंक देते हैं और फिर मंगोल सिपाही उस्मान साहब पर जाल डालते हैं, फिर मदद से पकड़ लेते हैं। फिर महिंदर उस्मान साहब को कहता है उस्मान साहब आपके साथ जो कुछ भी होता है आपकी लापरवाही की वजह से होता है। इस पर महिंदर से कहता है, इस पर बुरहान महिंदर से कहता है कि जो कुछ भी होता है वो लापरवाही से नहीं, लापरवाही तो हम सबके खून ही में है, तुम याद रखना मैं तुम्हारे गले को अपने दांतों से ही चबाऊंगा। और फिर महिंदर सारे सिपाहियों को कहता है कि इन सबको जिंदान में ले जाओ, लेकिन समांगर कहता है उन्हें वहाँ मत ले जाओ, इनको सहन में ले जाओ, मैंने उस्मान और उसके सिपाहियों के लिए खूबसूरत तोहफा रखा हुआ है। और दूसरी तरफ हम इस्मियान सुल्ताना को देखेंगे जो यानी हवेली से बाहर आ जाती है। महंगी खातून इस्मियान सुल्तान को कहती है उन लोगों ने अपनी हद ही पार कर ली है। इस्मियान सुल्ताना कहती है परेशान मत हो, इनकी सजा उनको जरूर मिलेगी महंगी खातून, मैं उनके किए का हिसाब उनसे जरूर लूंगी, लेकिन जब वक्त आएगा। उसी दौरान हम बाजार में ताजिरों को देखते हैं जो अपनी तिजारत को लेकर बहुत ही परेशान थे और ये सब कहते हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि उस्मान साहब यहाँ पर नहीं हैं। फिर फ्रेक कहती है कि इस्मियान सुल्तान कहती है कि ताजिरों तक खबर पहुँच गई है, अभी इस्मियान सुल्ताना का मसला है कि वो इन्हें कैसे हैंडल करेगी। और फिर बेंगी खातून सुल्ताना से पूछती है कि सुल्ताना ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पर इतने ताजिर क्यों इकट्ठे हो गए हैं। इस पर इस्मियान सुल्ताना कहती है कि बेंगी खातून आप तो अभी बाला और मलून खातून से बदला लेने की बात कर रही थी, मैं तो उन लोगों को पहले ही बदतरीन सजा सुना चुकी हूँ। दूसरी तरफ हम कोनिया में सुल्तान अलाउद्दीन को देखेंगे। वहाँ पर वजीर कहता है कि तुमने कहा था कि तुम अपनी बात सिर्फ सुल्तान अलाउद्दीन से ही कहोगे, अब सुल्तान को बताओ कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर अलाउद्दीन कहता है कि सुल्तान के लिए एक जाल बिछाया जा रहा है, इसके बारे में हम सुल्तान आपको खबरदार करने आए हैं। इस पर वो वजीर सुल्तान को कहता है कि सुल्तान मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि एक चरवा वो जाल कैसे देख पा रहा है जो हम देख नहीं पा रहे। इस पर अलाउद्दीन कहता है कि तुम इतना अगर भटक रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम भी जाल बिछाने वालों में शामिल हो। इस पर दुष्मन फ़कीर वज़ीर आला से कहता है कि अपना अल्फाज का चुनाव
सोच समझ के करें। जिसको तुम चरवाहा कह रहे हो वो सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से भेजी गई मानतों के मालिक हैं और एक खुद मुख्तार उस्मान साहब के बेटे अलाउद्दीन हैं। जिस पर वजीर कहता है कि अपने आप को तो देखो दुश्मन फकीर, तुम एक फकीर हो के वजीर जबान से लगा रहे हो। लेकिन सुल्तान वजीर को रोकते हुए कहता है वजीर उन्हें बोलने दो। फिर सुल्तान अलाउद्दीन से पूछता है मुझे बताओ मेरे लिए कौन जाल बिछा रहा है। इस पर अलाउद्दीन कहता है कि सुल्तान ये एक ऐसा जाल है जो मैं आपको अकेले में बताना चाहता हूँ। वो वजीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कौन किसकी तरफ है हम नहीं जानते, लेकिन सुल्तान कहता है कि मुझे यहाँ पर सब पर ही भरोसा है, अलाउद्दीन तुम बता सकते हो। जिस पर अलाउद्दीन कहता है कि सुल्तान आप यकीनन इस पर भरोसा करते होंगे, लेकिन जिस तख्त पर आप बैठे हुए हैं उस तख्त पर बैठने वाले को अपने रिश्तेदारों पर भी भरोसा नहीं होना चाहिए और ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए सुल्तान। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखेंगे जहाँ उस्मान साहब कोनिया में आने से पहले अपने सिपाहियों को बता रहे थे सुल्तान अलाउद्दीन सुल्तान मसूद के पास का भतीजा है। सुल्तान मसूद ने ही हमेशा हमारा साथ दिया है। उन्होंने इन सरहदों को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। अलबत्ता मंगोल इनसे किसी बात से नाराज हैं और इसलिए मंगोल उनके दुश्मन बन गए और सुल्तान मसूद की जगह सुल्तान अलाउद्दीन को तख्त पर बैठा दिया और हमें किसी तरह भी करके सुल्तान मसूद को तख्त पर बिठाना है। पर अलाउद्दीन कहता है बाबा हम ये सब कैसे करेंगे, लेकिन उस्मान साहब अलाउद्दीन को कहता है अलाउद्दीन ये सब तुम्हें ही करना होगा। के बाद हम वापस से कोनिया में देखते हैं जहाँ पर सुल्तान साहब लोगों को आप सब फिलहाल बाहर चले जाएं। लेकिन इस बात पर वजीर सुल्तान से सवाल करने लगता है, लेकिन सुल्तान उसे अगर मुझे दोबारा कहना पड़ा तो ये तुम आखिरी बार सुनोगे वजीर। उसके बाद वजीर और दुश्मन फकीर दोनों बाहर चले जाते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन सुल्तान को कहता है सुल्तान से किस बात की वजह से मंगोल नाराज हो गए हैं। जिस पर सुल्तान कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने सबको बाहर निकाल दिया। अगर अब भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं तो तुम सीधा ही मुद्दे पर आकर बात करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम अगला फैसला वजीर करेगा। जिस पर अलाउद्दीन कहता है जनाब वो आपका तख्त उल्टाना चाहते हैं, वो आपको कमज़ोर करना चाहते हैं और वापस सुल्तान मसूद को तख्त पर बैठाना चाहते हैं। इस पर सुल्तान पूछता है कि वो कौन हैं, वो कमीने लोग कौन हैं। दूसरी तरफ हम सोगोत में इस्माइल सुल्ताना को देखते हैं। वो बहुत ही गुस्से में थी और मैं उनसे ज़रूर हिसाब लूँगी। और फिर वो बेंगी खातून को कहती है कि जो उसने तुम और तुम्हारे बेटी के साथ किया उसका भी हिसाब वो ज़रूर देंगे। तो बेंगी खातून कहती है कि वालिदा सुल्ताना मैं तो बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। सुल्ताना कहती है कि बेंगी खातून आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, उनसे पहले उनका बाजार और फिर हवेली ले लूँगी उनसे। जिस पर फ्रेख सुल्ताना को कहती है सुल्ताना आपका रुतबा बुलंद हो, आप जो भी चाहती है वो हासिल कर लेती हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप इतना इंतज़ार क्यों कर रही हैं। अब तमाम ताजिरों के कारवानों को रोक बड़ी आसानी से बाजार को हासिल कर सकती हैं। जिस पर इस्माइल कहती है कि मसला बाजार का नहीं है माठा, दरअसल मैं तो उनकी इज्जत खाक में मिलाना चाहती हूँ। अब से कोई भी तिजारत कारवा शहर में नहीं आएगा और जब बाजार में सामान ख़त्म हो जाएगा तो एक कहर शुरू हो जाएगा। और वह फिर कहती है कि बाजार वाले उन सब का इंतजाम किस पर लगाएंगे। उस पर बेंगी खातून कहती है तमाम बाजार के तिजारतों को मलून खातून ही संभालती है, यकीनन वो मलून खातून को ही जिम्मेदार समझेंगे। मियां सुल्ताना इस पर कहती है कि बाला और मलून खातून कहत लाने के बाद कारवां लाने की कोशिश करेंगे और वो नाकाम हो जाएंगे। तब मैं इस बाजार में कारवां लेकर आऊँगी और भूख से मरने वाले लोगों की जान बचा लूँगी। इस पर बेंगी खातून कहती है लोगों की नज़रों में मलून और बाला खातून गिर जाएंगी, तमाम लोग सिर्फ आपकी ही ताकत देखेंगे। मियां सुल्ताना बेंगी खातून कहती है कि इसके बाद मैं बाजार में सारी जिम्मेदारी आपको दे दूंगी और फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस फ़र्ज़ को बेहतरीन तरीके से निभाओगी। पर तो बेंगी खातून बहुत ही खुश हो जाती है और फिर कहती है कि मैं आपकी उम्मीदों पर ज़रूर पूरी उतरूंगी इस्माइल सुल्ताना। और फिर वो कोहिनूर को कहती है कि कोहिनूर ये कैसा फ़ैसला है, क्या तुम्हें मेरा ये फ़ैसला पसंद आया है। वालिदा सुल्ताना कोहिनूर कहता है कि वालिदा सुल्ताना आप ही बेहतर जानती हूँ। पर इस्माइल सुल्ताना कहती है कोहिनूर तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं हमेशा ही सबसे बेहतर जानती हूँ। और फिर वो कोहिनूर को कहती है कि कोहिनूर क्या तुम जानते हो तुमने तो उस्मान को मौत के मुंह पर ही भेज दिया है। जहाँ पर इस्माइल सुल्ताना कोहिनूर ये बता रही थी वो जानती है कि वो उस्मान और कोहिनूर मिला हुआ है, काम कर रहे हैं और कोहिनूर ने ही उस्मान साहब को कोनिया भेजा है। इस्माइल कहते हैं कि उस्मान की वफादारी की वजह से ही मैं तुम पर भरोसा नहीं करती।
آج عثمان اور تم دونوں موت کے منہ پر پہنچ گئے ہو۔ جب کوہنور دیکھتا ہے کہ میرا سارا بانڈا ہی پھوٹ چکا ہے، پھر کوہنور کہتا ہے کہ آپ کا انجام بھی انہی کی طرح ہوگا والد سلطانہ، جو آپ سے پہلے یہاں پر آئے تھے۔ میں اپنے مقصد پر ابھی بھی ڈٹ کر کھڑا ہوں اور آپ کی ہر منصوبہ بندی ہمارے پاؤں تلے رو دی جائے گی۔ پرسمیان سلطانہ کہتی ہے، کوہنور میں تمہیں پہلے درد سے گزاروں گی اور پھر تمہارا خاتمہ کر دوں گی، اور تم یہ سب دیکھنے کے لیے زندہ ہی نہیں رہو گے۔ اور پھر وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتی ہے کہ کوہنور کو پکڑ کر زندان میں ڈال دو۔ دوستوں، آج کے ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہوا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔